Hello students, welcome to all in BSF Academy online classes. Dear student, in part 24 video, we have already solved some question of exercise 3.6 of NCERT book. Now student, in part 25 video, we will solve some word problem of exercise 3.6 of NCERT book. Now question number 2, first, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Now solution. Let speed of Ritu in still water is equal to x kilometer per hour and speed of current is equal to y kilometer per hour. Then speed downstream is equal to, स्टूडेंट जब डाउनस्ट्रीम की बात कही जाए तब हम दोनों स्पीड को ऐड करेंगे और जब अप स्ट्रीम होगा तब हम माइनस करेंगे, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. Now speed downstream is equal to, स्टूडेंट स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां कहा जा रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. मीन्स यहां पर डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और टाइम 2 आवर्स है, तो हो जाएगा स्पीड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 20 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, दिस इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. और स्टूडेंट स्पीड डाउन स्ट्रीम है यहां x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Again, speed अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम की बात कही जा रही है स्पीड के लिए. स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहां पर कहा जा रहा है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो यहां डिस्टेंस हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर्स, दिस इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर. दिस इंप्लाइज दैट स्पीड अपस्ट्रीम है, तो यह जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब स्टूडेंट ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड. Adding first and second, we get
जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 6। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, तो हो जाएगा 6 प्लस y इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 10 माइनस 6, this equal to 4. This implies that speed of Ritu in still water is equal to 6 kilometer per hour. And speed of current is equal to 4 किलोमीटर पर आवर, यह आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में कहा जा रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. स्टूडेंट, यहाँ इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man also. Now solution. Let one woman finished one woman can finish
वर्क इन x days alone and one man can finish work in y days. Then one woman's 1 day's work is equal to 1 upon x, and one man's 1 day's work is equal to 1 upon y. According to question, 2 women and 5 men can together finish work in 4 days. Then two women's 1 day's work plus 5 men's 1 day's work is equal to, student, 2 women and 5 men can together finish work in 4 days. Then 2 women's 1 day's work plus 5 men's 1 day's work, this equal to हो जाएगा यहां से 1/4. अब स्टूडेंट 1 women's 1 day's work 1/x है, तो 2 women's 1 day's work हो जाएगा 2 into 1/x, that means 2/x plus 1 man's 1 day's work है 1/y, तो 5 men's 1 day's work हो जाएगा 5 into 1/y, that means 5/y, this equal to 1/4. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं. अगेन अब फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 women and 6 men can finish the work in 3 days. This implies that 3 women's 1 day's work plus 6 men's 1 day's work is equal to 1/3. अब स्टूडेंट यहां से हम लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 1 women's 1 day's वर्क है 1/x, तो 3 women's का हो जाएगा 1 day's वर्क 3 into 1/x, दैट मीन्स 3/x प्लस
1 मीन्स 1 डेज वर्क है 1 अपॉन वाई, तो 6 मीन्स 1 डेज वर्क हो जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन वाई, दैट मीन्स 6 अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसे हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुटिंग 1 अपॉन x इक्वल टू u एंड 1 अपॉन y इक्वल टू v। इक्वेशन नंबर 4, इसे थर्ड सपोज कर लिए हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से हो जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1 अपॉन 4। दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट दोनों साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड से हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों साइड में तो हो जाएगा 9u प्लस 18v इज इक्वल टू, यहां पर भी स्टूडेंट हो जाएगा 1। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड इक्वेशन नंबर 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 5 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 72u प्लस 180 v इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ये 9, इक्वेशन नंबर 7। और स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 6 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाएगा 72u प्लस 126, 18 से 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 144 होगा, 144 v इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 8। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो स्टूडेंट तो ये कैंसिल हो जाएगा और 180 144 तो यहां से हो जाएगा 36v इज इक्वल टू 1, तो यहां से v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 36। v की वैल्यू हम निकाल लिए। अब इसे हम इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5, तो 5 में पुट किया जाए तो हो जाएगा 8u प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान 36 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 8u प्लस, अब ये हो जाएगा, इसको हम स्टूडेंट 4 से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा 5 और 9 इज इक्वल टू 1, 8u इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपान 9, तो यहां से हो जाएगा 8u इज इक्वल टू 9 माइनस 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 अपान 9। अब ये 4 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा,
तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 2u इक्वल टू 1/9, तो u की वैल्यू हो जाएगा 1/18 फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो 1/x की वैल्यू है u मीन्स हो जाएगा 1/18, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगा 18 फ्रॉम 4, तो यहां से हो जाएगा 1/y इक्वल टू 1/36, तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगा 36। This implies that one woman can finish work in 18 days alone, and one man can finish work in 36 days alone। यह आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग रफ कॉपी पर एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, और इसी के साथ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फिनिश हो गया। अब हम न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे, जिसे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, उसके कंसेप्ट को बताया जाएगा कि व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां पर आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे वीडियो में आप लोगों को बताए जाएंगे। थैंक्स।